Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 8th chapter, that is cell, the unit of life, and in my first lecture I discussed about the discovery of cell theory and various types of cells like prokaryotic, eukaryotic cells and plant cells and animal cells. And today we will start the discussion or study of cell wall, cell membrane and cytoplasm. Now what is cell wall or who discovered cell wall? Cell wall student सबसे पहले discovered हुआ था by Robert Hooke. We all know that Robert Hooke also discovered cell and he उसने कॉक सेल्स को यूज़ किया था टू सी दी सेल, और कॉक जो है वो सेल का डेड पार्ट है एंड वी ऑल नो दैट सेल वॉल इज़ द डेड पार्ट ऑफ द सेल. तो रॉबर्ट हुक ही ऑब्जर्व्ड और ही डिस्कवर्ड सेल एंड ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्जर्व द सेल वॉल, और जो नेम है वॉल दिस इज ऑल्सो गिवन बाय रॉबर्ट हुक. नाउ इन 1804 Carl Rudolphi and Link, they proved that cells they have independent cell walls. Cells they have their independent cell walls. Now cell wall जो है student वो एक structural layer है जो कि surrounds कर रही है some types of cells, because we all know that cell wall it is absent in case of animal cells. और cell wall जो है this is present outside the cell membrane. For example, if this is cell membrane, it is present outside the cell membrane. Cell wall is very tough, flexible, rigid, which provides cell with both structural support भी provide कर रही है and it is also providing protection to the cells from the entry of the microbes or foreign agents. Now plant cell wall. Plant cell wall is a remarkable structure and it provides the most significant difference between plant cells and other eukaryotic cells. So major difference है between plant cell and animal cell, that is the presence of a cell wall in case of plant cells, and in case of plant cells the cell wall is very rigid and it gives plant cells a very definite shape. Because of the presence of the cell wall, the plants they have a definite shape. Now while most cells they have a outer membrane, none is comparable in strength to the plant cell wall. Means plant cell wall that is very hard and rigid, it is providing support to the plant. ये plant को support provide करती है, ये plant के inner जो components है उसे protection provide कर रही है, ठीक है. And the cell wall is the reason for the difference between plant or animal cells function. तो functions में जो इतने ज़्यादा differences हैं between these two, that is plants and animals, that is due to the presence of cell wall in case of plant cells. Now next, what are the components of plant cell wall? Dear students, plant cell wall जो है that is composed of 4 components. First component क्या है? Middle lamella. Second है primary cell wall. Third है secondary cell wall and fourth is the tertiary cell wall. Now what is middle lamella? स्टूडेंट्स मिडल हमारे जो सेल्स हैं अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो हम ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? सीमेंट यूज़ करते हैं. एक सीमेंट यूज़ किया जाता है. इसी तरीके से जो सेल्स हैं दे आर जॉइंट, जो प्लांट सेल्स हैं दे आर जॉइंट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ अ सीमेंटिंग लाइक मटीरियल. एक सीमेंट लाइक मटीरियल से वो joined है and this cement like material is known as middle lamella. This is known as what? Middle lamella. Middle lamella, अब suppose this is one cell, अब suppose we can say कि ये एक cell है students, and दोबारा हम दिखाते हैं कि if suppose students this is one cell and this is another cell and this is another cell. So ये दोनों cells जो हैं वो आपस में joined हैं with this cementing like material. और इस middle lamella के inner side पे यहाँ पे this is the primary wall. Primary wall के inner again इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? सेकेंडरी वॉल. और सेकेंडरी वॉल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है टर्शरी वॉल, ठीक है. सो प्राइमरी वॉल अगर देखा जाए तो वो आउटर है,
टू दी सेल, अगर सेल की देखें तो सबसे बाहर प्राइमरी वॉल है, ठीक है, उसके बाद इनर टू दी प्राइमरी वॉल इज दी सेकेंडरी वॉल एंड इनर टू दी सेकेंडरी वॉल इज दी टर्शरी वॉल. नाउ मिडल लेमिला. So middle lamella present है between two adjacent cell. Look at this diagram students. So it is present between two adjacent cells and it is situated outside, है ना, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिडल लेमिला किस चीज़ का बना हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है. सो मिडल लेमिला इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट एंड इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ सीमेंट. It act as a cementing material which holds the adjacent cells together. Clear? Now next, primary wall. Primary cell wall जो है students ये formed है after the middle lamella. Middle lamella के बाहर जो है that is the primary cell wall. Primary cell wall जो है this is thin, flexible and extensible layer है. ये flexible है, थिन है, एक्सटेंड कर सकती है अपने आप को. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रो कर सकती है, ग्रो मतलब अपनी थिकनेस को इंक्रीज कर सकती है बाय द एडिशन ऑफ मटेरियल्स विद इन इट. सो इट कैन एक्सपैंड. दी बैकबोन जो है स्टूडेंट्स प्राइमरी सेल वॉल की वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज फाइब्रिल्स की. और जो मैट्रिक्स है वो किसका बना है स्टूडेंट्स, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिक कंपाउंड्स, लिपिड्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फॉर्म्ड है. सो वी कैन सी दिस डायग्राम स्टूडेंट्स. यहाँ पे डायग्राम में देखो कि ये जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्राइमरी सेल वॉल का. तो हम ये देख रहे हैं कि इनका जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है, ये इस तरीके से सेलुलोज के फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं. और ये जो सेलुलोज फाइब्रिल्स हैं दे आर सपोर्टेड, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, एक मैट्रिक्स सपोर्ट कर रहा है. और वो मैट्रिक्स किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स, हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन्स का और प्रोटीन्स का बना हुआ है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल. तो प्राइमरी सेल वॉल जो है दैट इज इनर टू द मिडल लैमेला और इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, थिन, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. ठीक है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि सपोर्ट हो रही हैं बाय हेमी सेलुलोज, pectin and soluble proteins. So these are the components of the primary cell wall. Next है students secondary cell wall. मैंने तुम्हें बताया है कि inner to primary cell wall, primary cell wall के inner side पे क्या present है, secondary cell wall present है students. Secondary cell wall जो है this is extremely rigid, hard है. So it provides strength to the plants and it is not found in all types of cells. इसके इंटर्न स्टूडेंट्स 3 लेयर्स होते हैं, S1, S2 एंड S3. सो S1 जो है दैट इज क्लोज टू द प्राइमरी वॉल. यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी वॉल दिखाई गई है देखो. सो प्राइमरी वॉल के बाद है S1 एंड देन S2 एंड देन S3. तो ये इनर साइड है स्टूडेंट्स, दिस इज द इनर साइड ऑफ द सेल. सो दिस इज वन सेल सपोज. सो हम देख रहे हैं कि बाहर वाली साइड पे क्या है, मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के अंदर क्या है, प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल के अंदर क्या है, सेकेंडरी वॉल. और सेकेंडरी वॉल की कौन सी लेयर है, पहले S1 है, फिर S2 है, फिर S3 है. मतलब सेल के इनर साइड पे कौन सी लेयर फेस कर रही है, S3 लेयर फेस करती है. और लाइक प्राइमरी सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल है स्टूडेंट्स दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन मटीरियल्स. Next, tertiary cell wall. Tertiary cell wall is deposited in few cells. It is not present in all cells. It is present in few cells. और इसे कंसिडर किया जाता है एज अ ड्राई रेजिड्यू ऑफ प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो है उसी से तैयार हुई है टर्शरी सेल वॉल. और बिसाइड सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जाइलेन, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टर्शरी सेल वॉल. नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है स्टूडेंट, सेल टू सेल कनेक्शंस हैं. ठीक है, एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मटेरियल है, दैट इज कंटिन्यूस विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द नेक्स्ट सेल, वो जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये जो सेल टू सेल कनेक्शंस हैं जहाँ पे एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस है, जिसके थ्रू मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, this is known as plasmodesmata. So cell to cell connections by which the protoplasm of one cell is continuous with another cell, that is known as plasmodesmata.
नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? मेजर जो कंपोनेंट है सेल वॉल का वो तो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स हैं, बिकॉज मेजर कंपोनेंट सेल वॉल का सेलुलोज है, और सेलुलोज किसका बना हुआ है? दैट इज़ मेड अप ऑफ शुगर यूनिट्स. सो इट इज़ अ सेल वॉल दैट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट मटेरियल. ठीक है, सो मेजर कंपोनेंट सेल वॉल के हैं सेलुलोज, पेक्टिन्स हैं, हेमी सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, फिनोलिक्स कंपाउंड्स, जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? दैट इज़ द सेलुलोज. It provides shape and strength to the cell wall, and it composes 20 to 30% of the dry weight of the primary wall. ठीक है, सो प्राइमरी वॉल का 30% पार्ट सेलुलोज है, और सेकेंडरी जो वॉल है उसका 40 to 90% पार्ट क्या है? सेलुलोज है. इसीलिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है दिस इज मोर स्ट्रोंगर, ठीक है, देन द प्राइमरी सेल वॉल. नेक्स्ट है पेक्टिन्स. पेक्टिन्स भी ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि रिच हैं इन गैलेक्टोरॉनिक एसिड, रेमनोज, अराबिनोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा. पेक्टिन्स दे आर प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन. किस में प्रेजेंट है? मिडिल लेमिला में, बिकॉज हमें पता है मिडिल लेमिला दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ठीक है, और ये एक सीमेंटिंग मटीरियल एक्ट करती है, सेल्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करती है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द cell wall. Next, functions of cell wall. What are the functions of cell wall? Cell wall जो है that determine the morphology, growth and development of plant cells. ठीक है, because ये outer एक rigid structure है तो ये naturally यही determine करेगी the overall growth of the plant cells. इट प्रोटेक्ट्स दी प्रोटोप्लाज्म. अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग मटेरियल है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द अटैक बाय वायरसेस, बैक्टीरिया या फंगस पैथोजन. They are rigid structures and thus help the plant in withstanding the gravitational forces. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए प्लांट के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सेल वॉल. ठीक है, सो इट इज़ द रिजिड स्ट्रक्चर जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को विथस्टैंड करने में हेल्प करती है. and they are involved in transport of materials and metabolites into and out of the cell, because जो cell wall होती है that is fully permeable. सेल वॉल के थ्रू कोई भी चीज़ जो है वो आ जा सकती है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स और मेटाबोलाइट्स में इन्वॉल्व है. And they withstand the turgor pressure which develops within the cells due to high osmotic pressure. ये स्टूडेंट जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करेंगे इन आवर 4th यूनिट, फर्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि जब एक प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, और वो जो दिस इज़ नोन एज टर्गर प्रेशर. तो टर्गर प्रेशर जो है वो प्लांट्स को बर्स्ट भी कर सकता है. इट कैन बर्स्ट दी सेल्स ऑल्सो. तो प्लांट सेल्स जो है वो बर्स्ट नहीं होती ड्यू टू द टर्गर प्रेशर विच इज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टूडेंट्स हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये क्वासी फ्लूइड है. क्वासी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेमी या हाफ, मतलब हाफ फ्लूइड है और हाफ क्या है? सॉलिड है. जैसे जेली होती है स्टूडेंट्स, तो जेली जिस तरीके से ना वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, इसी तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ ऑल्सो सेमी सॉलिड. ये इलास्टिक है, प्लाइबल है. ठीक है, प्लाइबल मतलब ये बेंड हो सकती है, एंड फिल्म लाइक थिन पार्टीशंस है ओवर एंड इनसाइड दी साइटोप्लाज्म. एवरेज थिकनेस कितनी है इसकी? 75 एंगस्ट्रॉम है. सिलेक्टिवली परमिएबल है. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि सिलेक्टेड चीज़ों की ही एंट्री करवाती है विद इन दी सेल्स. बट सेमी परमिएबल है फॉर वाटर. वाटर की एंट्री हो रही है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. डायनामिक है इन नेचर. ठीक है, डायनामिक इन नेचर मतलब एनी इंजर्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज़ रिपेयर्ड विद इन नो टाइम. कोई भी अगर पार्ट इंजर्ड हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का तो ये फटाफट अपने आप को रिपेयर कर लेती है. मतलब हमेशा ये डायनामिक रहती है, कंटिन्यूस नेचर है इसका.
फिर इट अपीयर ट्राइलेमिलर या ट्राईपार्टाइट। देखो स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें विजिबल नहीं है। इट इज़ ओनली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसे ऑब्जर्व किया जाता है तो इसकी 3 जो है परतें या 3 लेयर्स इसकी नज़र आती हैं। इस तरीके से 3 लेयर्स में ये नज़र आता है। सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, ट्राइलेमिलर। कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? मैंने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर तुम्हें करवा दिया है। तो वी ऑल नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। सो 20 to 79% लिपिड्स है एंड 20% पार्ट्स जो है वो प्रोटीन है, 1% पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स है एंड रेस्ट दैट इज़ दी वाटर। नाउ सो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स देखो सेल मेम्ब्रेन की दिखाई गई है। तो सेल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट ये जो दिखाया गया है हेड और टेल, ये इस तरीके से हेड एंड टेल, दीज आर दी लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? दीज आर दी लिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। लिपिड्स भी कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स हैं। और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनमें एक हेड प्रेजेंट है और एक टेल है। दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द टेल। हेड जो है स्टूडेंट दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, ये वाटर लविंग है। और जो टेल है दिस इज़ हाइड्रोफोबिक। तो हम देख रहे हैं कि जो लिपिड है उसने 2 लेयर्स बनाई हैं और उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज़ टूवर्ड्स द इनर साइड और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज़ टूवर्ड्स द आउटर साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ दी फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उन्होंने बाइलेयर्स जो हैं वो फॉर्म की है। जो नॉन पोलर टेल है दैट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड, है ना, बाहर वाला, क्योंकि सेल का जो बाहर का सारा एनवायरनमेंट है वो एक्वस है, दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंज हुई है कि उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ है और जो वाटर लविंग पार्ट है दैट इज़ टुवर्ड्स द आउटर साइड। बिकॉज बाहर की तरफ पानी है तो उसने बाहर अपना हाइड्रोफिलिक पार्ट लगाया है और अंदर जो है वो अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट लगाया है। तो ये स्टूडेंट्स जो दिखाई गई हैं स्ट्रक्चर में, these are the phospholipids। so देख रहे हैं हम phospholipids, they are arranged in bilayers। और इन phospholipids के साथ स्टूडेंट्स क्या एसोसिएटेड है? प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स कुछ प्रोटीन्स तो एक्सट्रेंसिक हैं, बाहर की तरफ हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इंट्रेंसिक हैं, ठीक है, इनर साइड की तरफ हैं, और कुछ प्रोटीन्स तो इतने बड़े हैं कि दे आर टूवर्ड्स द बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये टनल्स का काम करते हैं। देखो डायग्राम में दिखाया भी है, टनल्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला सारा एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है? दैट इज़ वाटर फियरिंग। मतलब अगर कोई वाटर सॉल्युबल चीज़ ने अंदर एंटर करना है तो फिर तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज अंदर वाला सारा पार्ट फैटी है, लिपिड्स का बना हुआ है। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ कैसे एंटर करेगी स्टूडेंट्स? थ्रू दीज टनल प्रोटीन्स इट विल एंटर इनसाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की देखो चेन्स एसोसिएटेड हैं विद प्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड है तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। क्लियर? सो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के स्टूडेंट्स। एक हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड, दूसरा हो गया प्रोटीन और तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट चेन्स। नेक्स्ट अब हम ये पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फ्लूट मोज़ेक मॉडल। फ्लूट मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया था बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज़ सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। तो सिंगर और निकल्सन ने 1972 में एक मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट दे सेड दैट द सेल मेम्ब्रेन इट हैज़ 2 लेयर्स। बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, विच एट बॉडी टेम्परेचर इज़ लाइक वेजिटेबल ऑयल। तो 2 लेयर्स किसकी हैं स्टूडेंट्स? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी 2 लेयर्स दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड्स।
फिर उन्होंने क्या कहा, मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड बट क्वासी फ्लूइड है, इट इज सेमी सॉलिड है. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे अकर एट प्लेसेस बोथ इनसाइड, अंदर भी हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, and they are towards the outer side of the lipid bilayer, that is extrinsic proteins. प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स. उन्होंने क्या कहा कि जो लिपिड पार्ट है उसे कंपेयर किया है विद द सी. जैसे सी में समुंदर में आइसबर्ग्स होते हैं, वैसे फॉस्फोलिपिड जो है उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. जो लिपिड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ फ्लूइड इन नेचर, दैट इज़ मूविंग, और उसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं, स्कैटर्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. सो ऐसे जैसे ये एक फ्लूइड है, इसमें इस तरीके से प्रोटीन स्कैटर्ड है ऑन दी लिपिड पार्ट. तो जैसे घी मूव करेगा तो नेचुरली उसके ऊपर जो प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं दे विल ऑल्सो मूव. तो इन्होंने इसको कंपेयर किया है विद प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स. Integral proteins, they pass into lipid bilayer and establish hydrophobic bonds with the lipid molecules. Some run throughout the lipid bilayer called tunnel proteins. अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले tunnel proteins के बारे में बताया कि ये जो proteins हैं, एक तो ये लिपिड बाइलेयर के साथ अपने कनेक्शंस जो हैं वो एस्टैब्लिश करेंगे, और टनल प्रोटीन्स जैसे ये दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स, ये दिखाए गए दीज आर दी टनल प्रोटीन्स. देखो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, सम आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड सम आर टनल प्रोटीन्स. सम आर एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन. मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट है फॉस्फोलिपिड, ये फैटी पार्ट है, तो कोई भी वाटर सॉल्युबल चीज़ जो है वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकती है. तो कोई भी वाटर सॉल्युबल चीज़ कैसे एंटर करेगी विद इन दी सेल? थ्रू दीज टनल प्रोटीन्स. सो दीज आर दी टनल प्रोटीन्स जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करेगी. Next, these tunnels, they form channels for the passage of water and water soluble substances, and proteins, they are held by both the polar and non-polar side chains. दोनों के साथ joined हैं proteins. lipids जो है polar के साथ भी joined है, head के साथ भी joined है, and they are also joined with the tail part of the lipids. Extrinsic proteins जो हैं they are located towards the cytosolic phase, then on the एक्सटर्नल फेस. ठीक है, साइटोप्लाज्म वाली साइड की तरफ जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और ये अटैच्ड हैं विद दी फॉस्फोलिपिड्स, हेड के साथ अटैच्ड हैं. ठीक है, या कई बार ये ट्रांसमेम्ब्रेन टनल प्रोटीन्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं. प्रोटीन्स दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी दे रहे हैं टू दी मेम्ब्रेन्स. ठीक है, एंड प्रोटीन्स दे मे शिफ्ट लेटरली, hence providing flexibility and dynamism, because proteins they can easily move na, so they are providing flexibility and dynamism to the membranes. Proteins function कर रहे हैं as enzymes, as carriers, as permeases. Permeases भी students carrier proteins ही होते हैं. Some lipids and extrinsic proteins present on outer sides, they possess what? They possess carbohydrate chains. So अगर carbohydrate chains जो है वो लिपिड के साथ जुड़ी है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगी, अगर वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएगी. कंजुगेटेड ओलिगोसैकेराइड्स दे फंक्शन एज रिकॉग्निशन सेंटर्स का काम कर रहे हैं, तो ये अटैचमेंट साइट्स का भी काम करते हैं, एंटीजन्स का काम करते हैं, और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं टू द आउटर सरफेस. सो दिस इज़ अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने स्टडी किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट वाज गिवन बाय सिंगर और निकल्सन. तो ये देखो दिखाया गया है, दिस इज़ द फॉस्फोलिपिड, ये बाइलेयर है ना, दिस इज़ दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और देखो ये प्रोटीन्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी जॉइंट हैं विद दी प्रोटीन पार्ट एंड ऑल्सो विद दी लिपिड पार्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन के? कंपार्टमेंटलाइजेशन है सेल्स की करवा रहे, प्रोटेक्शन करवाते हैं फ्रॉम द इंजरी, प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक कनेक्शंस दे रहे हैं बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्टिंग सल्यूट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. सेल मेम्ब्रेन दे आर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर अचानक कोई जो चेंज आ जाए उसको डिटेक्ट किसने करना है? सेल मेम्ब्रेन ने करना है. ठीक है, एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं, बिकॉज कई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं, सो एनर्जी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं.
secretory, excretory and waste products they thrown out by the exocytosis. Cell membrane के through जो cell के within waste products हैं they are also thrown out. So these are about the functions of the cell membrane. Next students, मैं तुम्हें थोड़ा सा मेन एक डिफरेंस बताती हूँ membrane transport की membrane transportation कैसे होता है. मेन दो तरीके हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं. एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब सब्सटेंस ने मूव करना है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. नाउ सब्सटेंसेस क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं तो यहाँ पे नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. जैसे पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरेगा, है ना, कोई हमें जो है एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी ताकि पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, बिकॉज ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, हाई एनर्जी है, सो इट विल नेचुरली फॉल डाउन. सो मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन दैट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है. इसको हम इस तरीके की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जब चीज़ें मूव करती हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. दूसरा होता है स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है. डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन. सेकेंड है स्टूडेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन. अब पानी को जब नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो नेचुरली उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो हम मोटर लगाते हैं तब तो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा पाएंगे, बिकॉज नीचे पानी के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, इट इज़ हैविंग नो एनर्जी. सो जब मॉलिक्यूल्स को हमने मूव करना है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ATP. दिस इज नोन एज व्हाट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. स्टूडेंट्स हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये सारे डिटेल में स्टडी करने इन आवर 4th यूनिट. तो यहाँ पे जस्ट तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. जब चीज़ें हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं. इसको हम कहते हैं, इस तरीके की मूवमेंट को हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, या अगेंस्ट द केमिकल कंसंट्रेशन. और यहाँ पे नेचुरली ATP या एनर्जी जो है दैट इज इन्वॉल्व. नेक्स्ट होता है बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब इकट्ठे जब चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दैट इज़ नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट एक होता है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का मतलब कि जब विद इन दी सेल, सेल के अंदर जब कोई चीज़ एंटर करती है, ठीक है, तो उस टाइम सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से इनवेजिनेट हो जाएगी अंदर की तरफ, एंड दीज सब्सटेंसेस दे विल एंटर इनसाइड. और इस तरीके से जो सब्सटेंसेस हैं दे विल एंटर विद इन दी सेल. इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में दो प्रोसेसेस होते हैं स्टूडेंट, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग. और फेगोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ईटिंग. मतलब कोई लिक्विड मटेरियल जो है, फ्लूइड मटेरियल अगर उसने एंटर करना है विद इन दी सेल दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस. और जब कोई सॉलिड मटेरियल ने एंटर करना है विद इन दी सेल दैट इज नोन एज व्हाट, फेगोसाइटोसिस. जैसे इस डायग्राम में तुम देख रहे हो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू सब्सटेंस जो है वो विद इन दी सेल एंटर किया. अब सेल के अंदर स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स हैं, सेल ऑर्गेनालीज हैं, स्पेशल सेल ऑर्गेनालीज. इन लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये जो फेगोसोम है जो बाहर से चीज़ अंदर लेके आया है उसके साथ फ्यूज़ करेगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम की जो एंजाइम्स हैं वो इस फेगोसोम के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है. तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे और वेस्ट मटेरियल जो है दैट विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम दी सेल. सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, फेगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग. लास्ट है स्टूडेंट्स एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, विद इन दी सेल जो भी वेस्ट है दैट इज़ रिमूव्ड आउट फ्रॉम दी सेल. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे एक सिक्रीटरी वेसिकल है, वेस्ट भी हो गया, या कई
सिक्रीशंस होती हैं जो सेल ने बाहर लेके जानी होती हैं, तो ये सिक्रीशंस भी कैसे मूव करती हैं आउटसाइड द सेल, दैट इज़ थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो हम देख रहे हैं, देखो ये एक सिक्रीटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा और इस तरीके से अपनी सिक्रीशन को बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट mechanisms which are taking place within the cell. Last है student cytoplasm. We all know that cytoplasm is also known as cytoplasmic matrix कहते हैं, cytosol कहते हैं या heloplasm कहते हैं. Clear fluid like fluid part of cytoplasm which can exist in either solution or in gel phase. ठीक है, liquid part, clear fluid part है cytoplasm, that is the plasma sol or the plasma gel. अब साइटोप्लाज्म जो ये मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है विद इन द सेल, वो जो है उसके क्या फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स? पहला है इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू सेल ऑर्गेनालीज फॉर फंक्शनिंग। ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो सारा कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एक्सचेंज जो हो रहा है मटेरियल्स का विद इन दी ऑर्गेनालीज कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। बायोसिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, तो ये सभी प्रोसेसेस भी कहाँ हो रहे हैं? दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जैसे हम रेस्पिरेशन करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ये स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, पेंटोज जो फॉस्फेट पाथवे है, दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल, जैसे कोई मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, सेल के इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो तुम्हें पता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, साइक्लोसिस है, इट इज़ रोटेटिंग। ठीक है, तो जैसे वो रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, तो नेचुरली वो सब्सटेंस जो एक एंड पे प्रेजेंट है वो दूसरे एंड पे बाय दी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। So students, this was all about the functions of cytoplasm. So today we have discussed three important components of the cell. First, cell wall, second, cell membrane, and third is the cytoplasm. I hope तुम सबको ये समझ आया होगा. Dear students, watch this lecture and make your notes like you are already doing it. Thank you.